السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بدلنے والے سبق کا مول داستان۔ دل گر ہے خدا کا نہ چھوڑ اسے۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہے، جب کوئی میسر ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو محبت نہیں دیتے، اور جب کوئی اپنا جس کے ساتھ سانسوں کا سفر طے کیا ہو وہ بچھڑ جائے نا تو پھر اس کی وفائیں ہمیں یاد کر کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آغا کی شادی اس کی کزن جگنو سے طے پائی تھی۔ جگنی پیاری لڑکی تھی۔ آغا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جگنو بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے، دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے آغا جگنو کی جانب دیکھنے لگا۔ جگنو میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو؟ جگنو آہستہ سے بولی کچھ نہیں آغا، بس یوں ہی۔ آغا نے جگنو کا ہاتھ تھاما۔ جگنو یار تم کو اتنا زیادہ بخار ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ جگنو کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا اور جگنو کو سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آغا کا ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ آغا امی کے پاس گیا۔ امی جان جگنو کو بہت زیادہ بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا، چیک اپ کیا۔ تکن کی وجہ سے جگنو کو بخار ہوا تھا۔ میڈیسن وغیرہ دی، جگنو کو آرام کرنے کا کہا۔ آغا کی گود میں سر رکھا، لیٹ گئی۔ آغا آہستہ آہستہ جگنو کا سر دبانے لگا۔ جگنو سو گئی۔ آغا سر دباتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ آغا اٹھا، نماز ادا کی۔ پھر جگنو کے پاس آیا، اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا میری جان۔ ہاتھ تاما پاس بیٹھ گیا۔ جگنو نے کروڑ بدلی ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں جگنو پہ بہت جچ رہی تھی۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگار اتر کر اس کے چہرے پہ بھی لگا تھا۔ جگنو کی آنکھ کھولی۔ آغا ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے آغا کو آواز دی، میرے آغا۔ آغا محبت کے صدقے اتارتی ہوئی، جی میری جان۔ آغا قربان آپ پہ، سوری نا آپ کو اتنا پریشان کیا۔ آغا نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھ میں بھرا۔ ارے میری جگنو، پریشان نہیں، میری جان نکال دی تھی آپ نے، اتنا رو رہی تھی، ساری رات سویا نہیں۔ اچھا اب بتاؤ کیسی؟ جگنو ہلکا سا مسکرائی۔ اب ٹھیک ہوں نا میری آغا؟ میرے آغا یہ محبت کبھی زندگی میں کم نہ ہو، ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا۔ مجھے محبت نبھانا نہیں آتی، ہاں کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آغا نے ہاتھ چوما۔ ہائے میرے پاگل، کون کم بخت بلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے چینج کر لو، پھر گیسٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جگنو پہ پنک رنگ بہت جچتا تھا اور آغا کی فرمائش پہ آج پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ آغا جگنو کو دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھا، یا میرے اللہ، میرے جگنو کو بری نظر سے بچانا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہے ہو، کسی دن میرے دھڑکن رہ جانی ہے تم کو دیکھ کر، اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا۔ جگنو مسکرانے لگی۔ آغا بس کرے، اب تو بس مکر نہ لگایا کریں، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں، آپ خود کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ حالات ایسے تھے کہ آغا آفس سے 50 بار فون کرتا، میری جگنو کیا کر رہی ہے، کھانا کھایا، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ جگنو بہت خوش تھی، بہت خوش۔ آغا بہت خیال رکھتا تھا، جگنو بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آغا اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا۔ کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ آغا اب تک جایا کرتا تھا، وہ گھر لیٹ آتا تھا، تب تک جگنو سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ آغا کے دونوں بھائی کوئی کام دھندہ کرتی نہیں تھے، گھر کا نظام آغا ہی چلایا رہا تھا۔ جگنو کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ آغا سے اکثر کہتی تھی، اپنے بھائیوں کو کہو اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اب آغا مسکرا کر بات ٹال دیتا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جگنو کچھ تلخ سے ہونے لگی۔ آغا بھی جگنو کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ آغا جو کچھ کما کر لیتا وہ سب خرچ ہو جاتا۔ جگنو نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، آغا آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے۔ دوسری جانب آغا خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے، جگنو نے الگ گھر کی خواہش ظاہر کر دی۔ دیکھو آغا، میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بھابھی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہے، گندی گالیاں دیتی ہیں جو مجھے برداشت نہیں۔ آغا بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، جگنو یار تم ریلیکس رہو، میں بات کروں گا بھائی بھابھی سے۔ لیکن جگنو تھی کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جگنو کی ایک ہی ضد تھی، الگ رہنا بس، جو کہ جگنو کا حق بھی تھا۔ آغا اب اپنے بھائیوں سے کیا کہتا؟ آغا نے بہت سمجھایا، جگنو میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں
1 साल तक अपना अलग घर बना लेंगे। लेकिन जुगनू थी कि वो अब ज़िद थी। आगा अगर मुझे आप अलग घर में नहीं रख सकते तो आप मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। आगा को भी गुस्सा आया, गुस्से से चिल्लाकर बोला तुम साफ क्यों नहीं कहती तुमको अब तलाक लेनी है। जुगनू खामती आवाज़ में बोली आगा ये आप क्या कह रहे हो। आगा गुस्से से बोला वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इश्क रहा है, खाला के बेटे के साथ तुम इससे शादी भी करना चाहती थी। अब वो अमेरिका से वापस आ गया है और तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया। जुगनू ने शादी के बाद एक दिन खुद बताया था आगा को कि इसको कज़न से प्यार हुआ था, लेकिन वो फिर अमेरिका चला गया इसलिए इसे छोड़ दिया और फिर आप मेरी ज़िंदगी में आ गए। ये एक गलती हुई थी जुगनू से, जो कि जुगनू को नहीं बताना चाहिए था। जुगनू रोने लगी। आगा आप अब मेरे किरदार पे शक कर रहे हो। जुगनू नहीं जानती थी शक की आग खुद जुगनू की वजह से जली थी। आगा चलाकर बोला जाओ तुमको दे दूंगा तलाक। दोनों में काफ़ी तलख कलामी हुई। सुबह जुगनू अपनी बाई के साथ अम्मी के घर चली गई। आगा ऑफिस में था। जब घर आया तो देखा जुगनू घर पे नहीं है। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई। आगा ऑफिस में था। जब घर आया तो देखा जुगनू घर पे नहीं थी। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई। बहुत गुस्सा हुआ। दिल चाहा अभी फ़ोन कर दूं और जुगनू को तलाक दे दूं, लेकिन खामोश हो गया। बाढ़ में जाए उससे मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्यों करूं। अब कुछ यूँ हुआ खाना भाभी लोगों के घर खाने लगा। कुछ दिन तो ठीक रहा। अब भाभी लोग भी नखरे करने लगी। कभी खाना दे देना, कभी कहना ख़त्म हो गया। एक दिन तो बड़ी भाभी ने कहा देख भाई आगा तुम होटल से खाना खा लिया करो, हम लोग सो जाते हैं और तुम लेट आते हो। अब रात 12 बजे हमसे तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं होता। ये पहली बार थी आगा को महसूस हुआ अपनी जुगनू जैसी भी थी, चाहे रात के 2 बजे जाती वो मेरे लिए खाना गर्म करके ले आती। दिल चाहा जुगनू को फ़ोन करूं इससे मना लूं, लेकिन अना ने रोक लिया। नहीं मेरी मर्दांगी पे दाग लग जाएगा। खुद गई है खुद ही आएगी। बाढ़ में जाए। दिन गुजरने लगे। अब आगा खाना बाहर से ही खा कर आता। एक दिन रात को भूख लगी, नूडल्स बनाने लगा। कहाँ बनाने आते थे, कोशिश तो की लेकिन नाकाम हो गया। फिर भूखा सो गया। भाई भाभी हाल भी नहीं पूछते थे। हाल कैसी पूछते, हर कोई तो आजकल मसरूफ़ है। बड़ा भाई कहने लगा देख आगा वक्त ज़ाया ना कर। अगर जुगनू नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो उससे और मेरी साली की शादी के साथ शादी कर लो। आगा खामोश हो गया। न जाने क्यों जुगनू का बिछड़ना मौत सा लग रहा था। दूसरी जानब जुगनू के भाई बाबा सब ने फैसला किया जुगनू अगर इसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक रिश्ता है हमारे पास, जुगनू की तलाक के बाद उसे रुखसत कर देंगे। जुगनू भाई ने नहीं आगा से जुदा होना चाहती थी। हर रोज़ इंतज़ार करती थी मेरा आगा मुझे एक बात फ़ोन करे, बस बस एक आवाज़ दे मैं अपनी आगा के पास लौट जाऊंगी। आगा भी यही सोच रहा था जुगनू बस एक बार मुझे चाहे एक मैसेज ही कर ले मैं उसे ले आऊँगा। कुछ दिन गुजरे। आगा बाज़ार में खड़ा कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीद रहा था। इतने में सामने से जुगनू गुजरी जो अपनी भाभी के साथ कुछ शॉपिंग करने आई थी। जुगनू को देखते ही दिल तड़प गया। सोचा उसे आवाज़ दूं, सीने से लगा लूं। जुगनू की इत्तेफाक से आगा पे नज़र पड़ गई। जुगनू का तो जिस्म काम गया। आगा सामने खड़ा था। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे से, रंग भी पीला पड़ चुका था। जुगनू लिपट जाना चाहती थी आगा से लेकिन खामोश रही। आगा ने नज़रें मिलाई फिर खामोशी से चला। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे लेकिन बस एक अना जिसने रोक रखा था। जुगनू घर जाकर बहुत रोई। जुगनू को बुखार हो गया, सर दर्द से पटने लगा। 10 दिन गुजर गए लेकिन जुगनू की हालत संभल नहीं रही थी। बुखार तक के ठीक ही नहीं हो रही थी। जुगनू की छोटी बहन ने आगा को फ़ोन किया भाई आए 10 दिन से आप ही बहुत बीमार है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आगा ने सुना तो मोहब्बत तड़पने लगी। जल्दी से बाइक स्टार्ट की, जुगनू की जानिब चल दिया। जुगनू कमरे में पड़ी नीम बेहोश थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने आगा था। सलाम किया। भाई सबसे पहले पूछा जुगनू कहाँ है। भाभी ने इशारा किया ऊपर कमरे में है। आगा दौड़ता हुआ कमरे में गया। जुगनू का भाई आगा को रोकने लगा। जुगनू के बाबा ने रोक लिया, जाने दो उसे। जुगनू करवट लेते हुई थी। आगा जुगनू की हालत देखकर तड़प गया। बाल चेहरे पे गिरे हुए थे। खमती हाथों से जुगनू के चेहरे से बाल हटाए। आहिस्ता से आवाज़ दी जुगनू। जुगनू के कानों में जैसी आगा की आवाज़ सुनाई दी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आंखें खुली, सामने आगा था। आगा माथे को छूम कर बोला पागल ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया तुमको। जुगनू ने नाराज़गी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहती हुई आंसू को छूम लिया। जुगनू के पाँव पे हाथ रखकर कान पकड़ कर बोला माफ़ कर दो जुगनू।
जुगनू के पाँव पे हाथ रखकर कान पकड़कर बोला, माफ़ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई। पल भर में आगा के सीने से लगी और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमरे पे तपकी दी, मेरी जुगनू बस बस, मैं आ गया हूँ ना, बस मेरी जान। जुगनू रोती हुई बोली, आगा मैंने मर जाना था आपके बिना, मुझे आप खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पे काबू ना रख सका, रोते हुए बोला, जुगनू तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुमको कैसे बताऊँ, एक सांस तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। चलो अपना घर चलते हैं। कितना खूबसूरत होता है ना ये रिश्ता भी। जुगनू जो पिछले 10 दिन से बीमार थी, आगा की सीने लगते हैं जैसे शिफा पाली हो। आगा ने अपने हाथ से खाना खिलाया जो जुगनू पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रही थी। आज बिरयानी की पूरी प्लेट खा गई। आगा का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए बेटी थी, कभी आगा का हाथ चूमती, कभी शिकवा करती। आगा ने बाहों में उठाया, चल मेरे जुगनू, मेरे प्यारी खूबसूरत आंखों वाली, अपने घर चलते हैं। आपके बिना घर बेरंग है। हाथ थामे और जुगनू को अपने घर ले आया। जुगनू को बता रहा था, जुगनू अपना हमसफ़र अपना ही होता है, सब लोग बदल जाते हैं, हमसफ़र साथ निभाता है। जुगनू ने कमरे की हालत दी कि हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। आगा की तरफ देखकर बोला, आगा ये क्या हालत बना रखी है? आगा मुस्कुराया, बिना मैं ऐसे ही बिखर गया था मेरी जुगनू। जुगनू ने पूरा कमरा साफ़ किया, हर चीज़ को सलीके से रखा और किचन में खड़ी आगा को बता रही थी कि क्या बाज़ार से लेकर आना है। आगा बहुत खुश था, जुगनू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जुगनू की आती ही घर में रौनक आ गई थी। फिर सोचने लगा, अगर मैं लोगों की बात सुनता तो अपना घर तबाह कर देता और फिर शायद मैं जुगनू को खो देता। कामती आवाज़ में बोला, अगर कोई मेरी तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी बीवी को यूँ छोड़ने का सोच रहा है, या कोई लड़कियां ना के खातर अपने शोहर से तलाक का सोच रही हैं, तो गलत कर रहे हैं। अपनी सोच को बदल लो, खुदा की कसम, बस थोड़ा सा झक कर देखो, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत लगेगी। अपनी अना को आग लगा दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओ और जाओ अपने हमसफ़र के पास लौट जाओ। अपना हमसफ़र जैसा भी है वो अपना साथ है, सब रिश्ते बदल जाते हैं, हमसफ़र साथ देता है। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा वक्त याद करें और मोहब्बत के पल याद करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छे और खूबसूरत वीडियो के लिए, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने आप को बहुत सारा ख्याल, अपने भाइयों को दुआ में ज़रूर याद करें। अल्लाह हाफिज़।